1992 کو جب یاد کیا جاتا ہے تو ایک بڑی خوشی کی لہر دوڑتی ہے اور ہم بڑے خوش تھے. اگر اس زمانے میں ہماری قوم نے جس طریقے سے چیریٹی دی اور جس طریقے سے اپنا دل کھول کے پیسے دیے یا مدد کی کھانا بنانے کے لیے, تو مجھے کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ جو اب حالات ہیں ملک کے, سب کو معلوم ہے مشکلات ہیں, پرابلمس ہیں, ملک کی اکانومی کا بھی ایشو ہے. تو اس سلسلے میں یہ اس وقت مجھے پوری امید ہے کہ ساری دنیا میں جو پاکستانی ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس وقت میں پاکستان کی ہیلپ کریں, کیونکہ ہم ہیں, پاکستان ہے تو ہم ہیں, ادروائز ہماری کوئی وقت نہیں ہے. تو میری اپیل یہی ہے سب سے, ایک تو جو ابھی اس کے اوپر بات کر رہے تھے کہ سوشل ڈسٹینسنگ میک شور کہ احتیاط کی جائے کیونکہ اس کو پھیلنا نہیں چاہیے, اور دوسرا یہ کہ اس مشکل وقت میں, مشکل گھڑی میں سب پاکستانی سے اپیل ہے کہ پلیز دل کھول کر ڈونیشن دیں تاکہ یہ ملک ہمارا جو ہے یہ دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے. بہت شکریہ وقار, بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ وقار جی. منیبہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی بالکل, آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی خان صاحب, بحیثیت انسان, پاکستان گلوبل کرائسس ہے, مورال بہت ڈاؤن ہے لوگوں کا پوری دنیا میں. What keeps you going? Because you cannot afford to give up. آپ کو کیا چیز ہمت دیتی ہے؟ What you look forward to every single day? دیکھیں میں بلیو کرتا ہوں, مجھے صرف ایک مسئلہ ہے کہ دیکھیں جب لوگ بھوکے ہوتے ہیں اور مشکل میں ہوتے ہیں اور وہ ہیں اس وقت, اور اس لیے میں چاہتا بھی ہوں کہ لوگ جا کے کبھی یہ دیکھیں کچی آبادیوں میں اور غریب بستیوں میں کہ وہ کیا ان کے اوپر گزر رہی ہے, اور وہ بڑے برے حالات ہیں ان کے. اس لیے تو ایک تو یہ چیز ہے, یہ تکلیف دیتی ہے, اور ہم سب کو ہے بحیثیت قوم, ہم سب کی ڈیوٹی ہے کہ ہم زور لگائیں اور انشاءاللہ پورا کوشش کریے. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے یہ جب میں دیکھا عورتوں کو یہ آتی ہیں اور ان کو 12,000 روپیہ ملتا ہے اور وہ دعائیں دیتی ہیں, یہ بڑا اللہ کا شکر ہے. اور کوئی سفارش نہیں, ان کو صرف ایک میسج آتی ہے کہ آپ جا کے پیسے لے لیں. لیکن میری جو ایک انسٹنکٹ اور ہمیشہ زندگی میں ایک چیز رہی ہے کہ جو کرائسس ہوتا ہے وہ ایک اپرچونٹیز بھی بڑی دے دیتا ہے, اور اس میں اپرچونٹیز بڑی ہیں ہماری قوم کے لیے. مثلا یہ کنسٹرکشن کے لیے میں پیکج دینا چاہتا تھا بڑی دیر سے کیونکہ ہم جکڑے ہوئے تھے, فیکٹر ایک طرف, IMF ایک طرف, وہ ہم نے بڑا زبردست پیکج دیا. اور اصل میں جو کنسٹرکشن ہے وہ اس ملک کو اٹھائے گی. جو ہم نے یہ جو افورڈیبل ہاؤسنگ ہے, غریبوں کے لیے گھر بنانا, چھت, وہ بڑا اچھا پیکج تھا, لیکن انٹرسٹ ریٹ بھی بڑا اونچا تھا, اور پھر ہم ہر قسم کا پیسہ چاہتے تھے اس میں آئے, لیکن فرق کی وجہ سے وہ کہتے تھے یہ نہیں آپ کر سکتے. وہ تو یہ اپرچونٹی مل گئی ہے. اور اگر ہماری یہ کنسٹرکشن چل پڑی, ایک چیز چل پڑی کنسٹرکشن, وہ نوکریاں بھی لوگوں کو دے گی, وہ ساری اکانومی 40 اور انڈسٹریز اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, سب چل پڑے گی. تو ایک یہ اپرچونٹی ہے. اور دوسرا یہ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک بڑا مسئلہ بہت بڑا وہ پاور سیکٹر کا ہے. پاور سیکٹر ہمارے لیے ایک, اب کیا میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بڑا عذاب یہ کہ ایک طرف کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں, مہنگی بجلی ہے اور لوگوں کو دے رہے ہیں سستی بجلی, اب قیمت بڑھاتے ہیں, لوگوں کو مشکل اور قیمت بڑھاتے ہیں, انڈسٹری کو پرابلم, ان کو سبسیڈائز کرتے ہیں, وہ ادھر سے پیسے کم, اور پھر وہ اور جو ڈفرنس ہے وہ سرکولر ڈیٹ. تو یہ عذاب بنا ہوا تھا. تو اب ایک ہمیں موقع مل گیا ہے کہ اس کرائسس کے اندر ہم یہ کانٹریکٹس کے اوپر بات کریں. نہیں ملک کے لیے مشکلات ہیں, اسی طرح ہمارا گیس کا اور LNG کا کانٹریکٹ, وہ اتنا مہنگا, اتنی مہنگی گیس لے وہ. سو یہ چیزیں ایک اپرچونٹی مل گئی. اگر ہم نے اپنے پاور کی جو ہماری جو انرجی کی اگر ہم یہ ریشنلائز کر گیا, اچھی ان کی قیمتیں نیچے لے آئیں بجلی کی, یہ تو اس سے ہماری انڈسٹری کو بھی فائدہ ہوگا, لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا, انفلیشن بھی نیچے چلی جائے گی. کیا قطر سے نیگوشیٹ کرنے کا پلان ہے آپ کا یہ LNG والا کانٹریکٹ؟ اس پہ آتے ہیں گڈ اپرچونٹی. وہ اس کی جو ہے وہ بہت زیادہ انتظار کر رہے ہیں بات کرنے کا. ڈاکٹر ہارون السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر ہارون فرام لندن. ڈاکٹر صاحب بولنے کب ہوں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب, آپ کرکٹ کا کوئی میچ نہیں چھوڑتے؟
जी डॉक्टर साहब, भाई डॉक्टर साहब कितना पैसा जमा किया? आज बड़ा अच्छा मैच हो रहा है भाई, अच्छा मैच हो रहा है। हम बता के सेंचुरी बनेगी तो मैं पैसा मिला हूँ अबाउट 2 लाख रुपीज। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अगले जी कॉलर है हमारे बहुत बहुत शुक्रिया। वसीम अकरम हमारे साथ है, विनिंग टीम का हिस्सा 92 वर्ल्ड कप। वसीम भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, वालेकुम सलाम वसीम। to the whole country of course. मैं आपको काफी देर से सुन रहा हूँ, आप सब लोगों को, हमारे जो सीनियर एंकर सारे बैठे हैं सब कुछ सुन रहा हूँ। एंड आई थिंक एंड ऑफ द डे जो मेरी एक अपार्ट फ्रॉम जो हम जमा कर रहे हैं आपके एहसास प्रोग्राम के लिए, जो हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी, अब तो रमजान नहीं आ रहा है, आई एम श्योर कि मुझे पता है कि मुस्लिम्स आपके साथ हम ये 90 से शुरू हुए थे चंदा जमा करने, उनके दिल बहुत बड़े और वो जरूर थे। पर आई थिंक जो मैंने नोट किया पिछले 1-1.5 हफ्ते में कि हम आई थिंक थोड़ा रिलैक्स होना शुरू हो गए। आई कैन अंडरस्टैंड आप क्या कह रहे हैं, क्या क्या नहीं खोलना। मैं टॉकिंग अबाउट द एरिया आई लिव इन, पीपल आर गोइंग इन ग्रुप्स एंड वॉकिंग, वो आई एम ओके कि फैमिली के मेंबर्स के लोग जा रहे हैं, वो ठीक है। बट आप मिल के सड़कों पे साइकिल 20 रखी जा रही है, सो वो अगर आपने मास्क पहने हैं, डिस्टेंस के साथ जा रहे हैं, देन इट्स ओके। बट मैं बार बार ये कहता हूँ सबको, छुट्टी नहीं है। सो अगर आपने वॉक भी करनी है तो डिस्टेंस देखिए करेंगे, उस टाइम पे करेंगे लोग थोड़े कम हो। सो ये चीजें आई थिंक उनको बतानी हमें, हम लोगों को, आम लोगों को बतानी बड़ा जरूरी है, अपार्ट फ्रॉम कि डिस्टेंस लेके और किस तरीके से, जैसे आप कह रहे हैं, कंट्रोल लॉकडाउन करना है। वसीम आपको एक देखना चाहिए, एक पेशाब में क्वारंटीन हो रही है और वहाँ लोग रोटियां खा रहे हैं जो क्वारंटीन के अंदर, आप लोग वो देखना चाहिए, जरूर सबको देखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आप देखें इसमें मैं बार बार एक चीज रिपीट करता हूं, देखें गवर्नमेंट की कैपेसिटी कि इस अकेला इस वायरस का मुकाबला करना वो बहुत कम है। ऐसी जहां भी अगर कोई जो भी माशरा जीतेगा ये जंग, उसके अंदर सारी कौम लड़ेगी और कौम के अंदर फिर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं फिर से कहता हूं कि मुझे काफी तनकीद आ रही है इस चीज के ऊपर, और मैं समझता हूं डॉक्टर्स का कंसर्न कि आपने मसजिदें खोल दी रमजान के अंदर, लेकिन मैं ये समझता हूं कि क्या ये कौम ने जिम्मेदारी नहीं लेनी? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या मैं अपने लिए कह रहा हूं कि आप घर में इबादत करें, आप जब मस्जिद में जाएंगे तो आपको समझना चाहिए कि उसमें रिस्क है, और जितने आप बेहतियाती करेंगे आप लोगों की जिंदगी रिस्क डाल रहे हैं उसके ऊपर, तो लिहाजा ये कौम के ऊपर है। आप सबको मिलकर इसका मुकाबला करना पड़ेगा। कोई गवर्नमेंट हुक्म दे के डंडे मार के नहीं करवा सकती कुछ। जी हमारे साथ हैं ताहिर जावेद यूएसए से। अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई। वालेकुम सलाम। जी ताहिर साहब, आप बराह रास्त हैं इस वक्त में, प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। जी मेरा नाम ताहिर नहीं है, मेरा नाम डॉक्टर फजल है सर। अच्छा जी, आप डॉक्टर फजल साहब। जी डॉक्टर साहब। जी जी सर, बस एक मुझे डोनेट तो कर रहा हूँ 2000 यानी 2 लाख रुपीज 4000 दिरहम, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब से भी और आप सब से लोगों को जो एक बेचैनी होती है कि जो हमारा पैसा जो दिया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब पर यकीनन सबको यकीन है कि ऑनेस्ट पर्सन, लेकिन जो सरकारी मशीनरी उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे और कैसे चेक रखेंगे उस पर कि ये सही तरह पहुंचे? क्योंकि अभी भी जो रिसेंटली डिस्ट्रीब्यूट किया था एहसास प्रोग्राम के तहत, तो बहुत सारे लोगों की शिकायतें रही हैं कि सही जगह नहीं जा रहा है, कुछ इसमें खुद हुई है। ऐसा प्रोग्राम अनाउंस करेंगे ताकि लोग और कॉन्फिडेंस के साथ आपके पास आए। देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपको एक चीज वाजे कर दूं, ये जो प्रोग्राम के जरिए पैसे दिए जा रहे हैं, ये सारों के हमारे पास रिकॉर्ड है किसको पैसे जा रहे हैं। ये जो डेटाबेस ये बड़ी मुश्किल से 10 महीने लगे हैं कि जो सबसे गरीब तबका है उसका डेटाबेस बनाया जाए। ये पुराना भी एक डेटाबेस था, पुराना बिस्क का, उसको अपडेट किया गया, उसमें से 8 लाख लोग निकाले गए, फिर उसमें से नए लोगों को लाया गया, और मजीद और लोग आ रहे हैं इसमें जो कि SMS के जरिए, लेकिन उन सबको वेट किया जाता है। और ये आपको यकीन दिला रहा हूं कि इससे बेहतर जितना ये ट्रांसपेरेंट प्रोग्राम हो रहा है, मैं चैलेंज करता हूं पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। ये हो ही नहीं सकता कि 1-2% कई जगह पे हम सुन रहे हैं चीजें, कई जगह एक जो
दुकान में उन्होंने कोई अगर 12,000 में से 1,000 रखा है, उसमें से लोगों को पकड़ा है। इसमें सारी एजेंसीज इन्वॉल्व है। मैं आपको बताऊं, इसमें हमारी FIA, हमारी पुलिस, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और ISI सबसे हमने हेल्प ली हुई है कि मुकम्मल तौर पे इस प्रोग्राम को कामयाब करें और ट्रांसपेरेंट करें। जी, सलमान जुनून के जो सलमान हैं, जो कि खुद भी 14 दिन क्वारंटीन में रहे हैं, उनका रिकवर किया, आप तो वो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं $10,000 प्राइम मिनिस्टर के रिलीफ फंड में। और मजीद भी कॉल्स आ रही हैं, और तमाम जो नाजरीन हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पे अकाउंट नंबर आ रहा है। और अब हमारे साथ है ताहिर जावेद। जी ताहिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी ताहिर भाई। जी, मैं ताहिर जावेद बोल रहा हूँ जी मरदा से। तो पहली बात तो ये कि खान साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को बहुत बहुत मैं इसमें मुबारकबाद देना चाहता हूँ। पहले 3-4 हफ्ते पहले जब ये लॉकडाउन की बात कर रहे थे तो हमारी समझ नहीं आ रहा था, जो अखबार में नाम दिया स्मार्ट लॉकडाउन का। लेकिन आज जब इसको कंपेयर करते हैं यहाँ बैठ के अमेरिका के साथ, जहाँ पे मैं जो मैनेजमेंट का सब कैपिटल काउंसिल में, तो ये बात होता है कि जो उन्होंने पाकिस्तान में किया वो वर्क कर रहा है। तो मैं इनको बहुत ज्यादा मुबारकबाद देता हूँ। फिर इनके जो इनिशिएटिव हैं कंस्ट्रक्शन को मजदूरों के लिए, तो मैं उसके लिए आज 1 करोड़ रुपया सांसद को भेजूंगा इस प्रोग्राम के अंदर। और आइंदा भी वन फोन कॉल अगर जैसे भी ये हुक्म करेंगे उसके लिए हम खड़े हैं यहाँ पे, और एक उनके साथ में जैसे भी जहाँ जहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर, बहुत बहुत शुक्रिया। क्रिकेट के जमाने में बहुत से पुराने लोगों को याद होगा कि जावेद मियादाद ने एक छक्का मारा था और उस पर कमेंट्री कर रहे थे कौन, जिन्होंने कहा दैट्स अ सिक्स, वो थे इफ्तिखार अहमद इफ्ती भाई। वो हैं अब हमारे साथ कनाडा से। अस्सलाम वालेकुम इफ्ती भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी इफ्ती भाई, प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, बाकी मेहमान भी हमारे। वेलकम टू दिस ट्रांसमिशन। क्या कहना चाहेंगे इफ्तिखार भाई? शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। इफ्ती क्या हाल है आपका? बड़ी देर होगी, पता नहीं आप टोरंटो में ही ब्रेन ड्रेन हो गए। आजकल तो यहाँ जेल में बैठे हुए हैं, घर में। वैसे ये पहली दफा है कि लोग वहां से पाकिस्तान आने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो हमारी सारी एलीट यहाँ से बाहर जाती है। अब अमेरिका और इंग्लैंड से मेरे पास इतनी रिक्वेस्ट हैं कि वो वापस आना चाहते हैं, किस तरह की PI के 10 भेजों को भेज रहे हैं। तो इफ्ती आप ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मैं ये कहना चाहता था प्राइम मिनिस्टर, थोड़ी सी पास की बात है कि जब आपने डिसाइड किया था कि पॉलिटिक्स में जाएंगे, तो मुझे यकीन था कि आप एक प्राइम मिनिस्टर होंगे। अब आपने वो ओहदा संभाल लिया है। अच्छा, ये जो ओहदा है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स जॉब इन द वर्ल्ड, एंड इन माय ओपिनियन एडमरेबल जॉब। क्यों? क्योंकि आप सबसे पहली चीज मुल्क में ईमानदारी है, दूसरी चीज मुल्क में पैशन ऑफ पॉलिटिक्स को आपने फायर किया, और तीसरी चीज पेट्रियटिज्म वापस। ये और इकोनॉमिक चीजें आप हैंडल कर ही रहे थे, इसलिए बहरान वायरस का आ गया। ये मेरे ख्याल में इससे बड़ा बहरान दुनिया में कभी आई ही नहीं है, और किसी को नहीं पता है कि ये किस तरह जा रहा, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, गरीब हो, किसी के कंट्रोल में जो आप कर रहे हैं पाकिस्तान में, दैट इज एज गुड एज एनीवन एल्स इज डूइंग। लेकिन मैं ये सबसे अपील करूंगा कि देखिए, हम सबको इस वक्त यूनाइट होना है और कंट्रीब्यूट करना है। जो जिसकी हैसियत है वो कंट्रीब्यूट करे, जितनी हैसियत है, और जब भी पैर पैसा हो तो डालें, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है कि ये मुल्कों को तबाह कर देगी, इकोनॉमी को तबाह कर देगी।
तो हमें पूरी कोशिश करनी है उनकी कि हम इसको डिफीट करें। आपने देखा होगा कि दुनिया में एक वर्ल्ड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दे आर टॉकिंग। तो इसलिए आइए हम सब मिल इसमें इस फंड में पैसे डालें। मैं खुद भी कंट्रीब्यूट करूंगा इंशाल्लाह, और यहाँ जितने हैं कैनेडियंस और दूसरे लोग जिनको जानता हूँ उनसे भी कहूँगा कि आप लोग कंट्रीब्यूट करें। और मेरे ख्याल में हमें हमारे जो कायद थे, कायद आज़म मोहम्मद अली, वो एक उनका मोटो था यूनिटी बेस्ड डिसिप्लिन। इस वक्त हमें इस मोटो की बहुत जरूरत है। क्यों यूनिटी? क्योंकि इस को डिफीट करने के लिए, इस लड़ाई को जीतने के लिए इस वायरस से हमें यूनिटी चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया एफटी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। CEO जैज है हमारे साथ। जी आमिर इब्राहिम साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फैसल, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। क्या मजीद डोनेट करना चाहेंगे? आपने तो कर लिया पहले। जी देखिए, पेशकारों के लिए अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान में कंट्रीब्यूट करने के लिए रिगार्डलेस ऑफ द अमाउंट। और खान साहब ने जिस तरह कहा है कि ये सिर्फ हुकूमत पूरा नहीं कर सकती, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ खासतौर पर कॉर्पोरेट कम्युनिटी के कि वो भी स्टेप अप करें, अपनी जिम्मेदारी का शो करें और पाकिस्तान के लिए इस वक्त मदद करें। एक दो चीजें मैं और बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में 6 करोड़ लोग जो हैं वो जायज इस्तेमाल करते हैं, और आपने टीवी के ऊपर डिस्क्लोज भी किया 677 को। जो आज पैसे डालेगा इस कंट्रीब्यूशन में, जैज उसको डबल अप कर देगी। तो अगर आप 100 रुपए डाल रहे हैं तो जैज अपनी तरफ से 100 रुपए मजीद डालेगी। इसी तरह हमारे 80 लाख कस्टमर्स हैं जो जैज कैश इस्तेमाल करते हैं और जैज कैश से PM रिलीफ फंड में पैसे डाल सकते हैं। तो जो लोग जैज कैश के थ्रू इस वक्त पैसे डालेंगे, अगेन हम उसको डबल कर देंगे। तो अगर कोई 1000 रुपए डाल रहा है तो हम 1000 रुपए जैज अपनी तरफ से डालेगा। तो मैं सारे लोगों को दावत देता हूं कि प्लीज इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाएं। ये बहुत बड़े बुरहान से हम गुजर रहे हैं, हुकूमत अकेला नहीं कर सकेगी। और जाती तौर पे मैंने एक कंट्रीब्यूशन दे दिया, मैं वो बताना नहीं चाहता, लेकिन आई होप कि जो भी हमारी कंट्रीब्यूशंस हैं तो पाकिस्तान को इस मुश्किल से जी बहुत शुक्रिया। बताना नहीं चाहते वो सारों को कहिए जायज कैसे देते हैं आपको डबल। देखिए अगर आप अपने SMS करते हैं 6677 पे तो वो कंपनी जो है उसको डबल मैच करके जो करोड़ों प्लेज कर रहे हैं इनको बोले इसके थ्रू वो कर रहे हैं घरों में 20 रुपए पर। लेकिन इनके उन्होंने का नाम नहीं बताना नहीं चाहता कितना कह रहा हूँ। खान साहब दार परवेज भट्टी वाला वाकया याद आ जाता है, वो जो चेक वापस लेंगे। लेकिन इस वक्त हम जा रहे हैं एक ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं। आप ये ट्रांसमिशन देखते रहें क्योंकि इस ट्रांसमिशन के आखिर में मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं वो एक इज्तिमाई दुआ कराएंगे। आपको बताएं कि एहसास टेलीथॉन में वज़ीर आज़म इमरान खान की शिरकत, जहां से आपको बराह रास्त दिखा रहे थे वज़ीर आज़म हाउस से। डॉक्टर्स और तिब्बी अमला इस वक्त फ्रंट लाइन पर है। रमज़ानुल मुबारक से जो उसका लाए अमल है वो उलमा से मिलकर मुशावरत से तय किया है। बहैसियत कौम हमें मिलकर गरीब तबके की मदद करनी है। हमारी हुकूमत ने सबसे बड़ा रिलीफ प्रोग्राम दिया। हुकूमत लोगों को रिलीफ फराहम करने की भरपूर कोशिश कर रही है। एहसास कैश प्रोग्राम के मुतालिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि एहसास कैश प्रोग्राम मुकम्मल शफाफ है। अब हमें स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना है। फैसला साजी में अमीर और गरीब का फ़र्क भी ख़त्म करना होगा। रमज़ानुल मुबारक में लोग घरों में रहें, इबादत करें। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बेहतरीन काम कर रहा है। तामीराती शोबा खुलने से रोज़गार के मौके में रहे। खबर सबसे पहले। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। हमारा असूल, हमारी सहाफत, इंसानियत, इस्लामियत, पाकिस्तानियत। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मैं हूं अली तारिक,
کھیل کے میدانوں میں کیا ہو رہا ہے میں رکھوں گا باخبر سب سے پہلے۔ جمہوریت، سیاست اور حالات حاضرہ، ریاستی ادارے اور عوام کی قسمت، آج کا دن، آج کی حکومت، آج کی سیاست، آج کی عدالت۔ خبر، تجزیہ اور بے لاک تبصرہ۔ جانیے پروگرام سجاد میر کے ساتھ۔ میں آپ کو دوں گا سب سے پہلے شوبز کی اچھی اور گرما گرم خبریں، شجر الدین ٹی وی ٹوڈے۔ میں ہوں شعیب ہاشمی، میں رکھوں گا باخبر پنجاب کے ایوانوں میں ہونے والی ہر ایک قانون سازی سے۔ ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے۔ کیا ہو سکتا ہے، کیا ہونے والا ہے؟ معیشت، سیاست، خارجہ پالیسی، صحت، انصاف اور تعلیم کا معیار۔ پاکستان کے کونے کونے میں ہر واقعے کی ہمیں خبر ہے، کیونکہ ہم ہیں ہر جگہ موجود۔ ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے۔ میں ہوں علی طارق، کھیل کے میدانوں میں کیا ہو رہا ہے میں رکھوں گا باخبر سب سے پہلے۔ میں آپ کو دوں گا سب سے پہلے شوبز کی اچھی اور گرما گرم خبریں، شجر الدین ٹی وی ٹوڈے۔ خبر کی کوئی سرحد نہیں، کب کہاں کیا ہونے والا ہے، آج کہاں کیا ہو رہا ہے۔ قومی اور بین الاقوامی سیاست، پل پل بدلتے ہوئے حالات پر تبصرہ اور ہر وہ خبر جو ابھی تک ہے پس پردہ۔ جانیے فیصل بٹ سے پروگرام اوپن سیکرٹ۔ میں ہوں شعیب ہاشمی، میں رکھوں گا باخبر پنجاب کے ایوانوں میں ہونے والی ہر ایک قانون سازی سے۔ ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے۔ کیا ہو سکتا ہے، کیا ہونے والا ہے؟ معیشت، سیاست، خارجہ پالیسی، صحت، انصاف اور تعلیم کا معیار۔ پاکستان کے کونے کونے میں ہر واقعے کی ہمیں خبر ہے، کیونکہ ہم ہیں ہر جگہ موجود۔ ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے۔ نوول کرونا وائرس ایک نیا وائرس ہے۔ اس کی علامات میں بخار، کھانسی اور سانس لینے میں دشواری شامل ہے۔ بیماری کی شدت نمونیا کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ یاد رکھیں، ہر زکام، بخار اور کھانسی کرونا وائرس نہیں، اور متاثرہ افراد میں سے 97% لوگ صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ عوام سے درخواست ہے کہ کھانستے اور چھینکتے ہوئے منہ ٹشو پیپر یا رومال سے ڈھانپ کر رکھیں۔ ہاتھوں کو اکثر صابن سے کم از کم 20 سیکنڈ تک دھوئیں۔ اگر آپ نے گزشتہ 14 دنوں میں بیرون ملک بالخصوص چین یا ایران کا سفر کیا ہے اور کرونا وائرس کی علامات کا شبہ ہے تو ہیلپ لائن نمبر 1166 پر رابطہ کریں۔ اصل انسان کے ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ مشکل وقت میں کیا کھڑا رہتا ہے یا نہیں۔ کورونا ریلیف میراتھن، ٹی وی ٹوڈے اور الخدمت فاؤنڈیشن ایک ساتھ۔ کورونا عذاب نہیں، ایک وارننگ۔ کورونا سے ڈرنا ہے نہ لڑنا ہے۔
बल्कि अपना अपना क़िबला दुरुस्त करना है। आसानियां बांटने के सफर में टीवी टुडे और अल खिदमत फाउंडेशन हम कदम। दुनिया परेशान है और आपका इम्तिहान है। आइए मिलजुल कर इंसानियत का सहारा बने। टीवी टुडे और अल खिदमत फाउंडेशन के नेटवर्क में आए, अपना सरमाया, वक्त और सलाहियतें मुल्क और कौम के लिए वक्फ करें। टीवी टुडे की मैराथन ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। राबिता 04235843206 04235882015। अपने अतियात देने के लिए अल खिदमत फाउंडेशन के इन नंबर्स पर राब्ता कीजिए। 04235441516 03004431 03000771601। अल खिदमत फाउंडेशन के सुनहरी बैंक अकाउंट नंबर 000120000119439 और सुनारी बैंक के इंटरनेशनल अकाउंट नंबर PK12SONE 0001200119439 में भी डोनेशन जमा कराए जा सकते हैं। टीवी टुडे और अल खिदमत फाउंडेशन एक साथ। कोरोना रिलीफ मैराथन ट्रांसमिशन का हिस्सा बनिए रोजाना दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक सिर्फ टीवी टुडे पर। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादत गाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। हमारा उसूल, हमारी सहाफत, इंसानियत, इस्लामियत, पाकिस्तानियत। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मैं हूं अली तारिक। खेल के मैदानों में क्या हो रहा है, मैं रखूंगा बाखबर सबसे पहले। और टेलीफोन करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन टेलीफोन मिल नहीं रहा। लेकिन आप यकीन कीजिए, आपका ये जज्बा है, ये दूसरों को इंस्पायर कर रहा है और बहुत से लोग सामने आ रहे हैं। और इंशाल्लाह इस नेक काम में, इस कार खैर में हम सब ने मिल के कंट्रीब्यूट करना है। हामिद मीर साहब, आप वक्फे पे जाने से पहले कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहूँगा कि हमें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए फंडिंग पे। पूरी कौम हमें देख रही है और जितने ज़्यादा हम इसमें फंड इकट्ठे करेंगे तो उससे पाकिस्तान का नाम बुलंद होगा। तो इसमें मैं चाहूँगा कि आप एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो है वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आपने 90s में मोबिलाइज किया था और वो आपका प्रेशर ग्रुप बना था और वो थे बच्चे, स्कूलों के बच्चे। मुझे याद है आप ये कामरान शाहिद साहब स्कूल में पढ़ते थे, आप इनके स्कूल में गए, इन्होंने भी आपके लिए यही मेरे स्कूल में पढ़ते थे, ये भी कैसे अच्छा। और ये फिर आपके टाइगर फोर्स में भी शामिल हो गए थे। ये जो फैसल जावेद साहब है, ये भी स्कूल के जमाने से ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैं कुछ लोगों को आपकी मिसाल दे रहा हूँ। उस जमाने में आप जब स्कूल में जाते थे, असेंबली से खिताब करते थे, तो वो बच्चे जो है वो अपने पेरेंट्स को, अंकल को, आंटी को मोबिलाइज करते थे। तो इस वक्त मैं चाहूंगा कि आप जो स्कूलों के बच्चे जो घरों में बैठे हुए हैं, छुट्टियां हैं, उनको बताएं कि अगर आप इस वक्त कंट्रीब्यूट करेंगे इसके SMS के जरिए भी, इसका मुस्तकबिल में आपको क्या फायदा है। जी फैसल साहब, इसमें जो आप सैयद असद साहब हैं हमारे साथ टेलीफोन पर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम प्राइम मिनिस्टर साहब। जी वालेकुम My name is Syed Asad Hussain. I'm calling from London. जी And first I'd like to congratulate you, your team, the good friends Zulfi Bukhari, Shahzada Jahangir, all working endlessly for improving Pakistan's image worldwide, bringing positivity and opportunity. Yes, COVID-19 is a worldwide pandemic and taken everyone by surprise. However, I feel that the government of Pakistan has handled the situation better than most countries and would urge the whole population to be patient and take caution during these unexpected challenging times. So as obviously second generation Pakistanis, we all feel we can trust you and we need to do our part, and what better time than the blessed month of Ramadan. I'm glad to announce a donation on behalf of me and my brothers of £50,000, equivalent to 10 million rupees. Thank you very much. Thank you. Really appreciate it.
आगे बढ़ेंगे और हामिद मीर साहब ने जो सवाल आपसे पूछा, देखें हुआ ये, हामिद मैं ब्रीफ बैकग्राउंड दे के, इतना ज्यादा पैसा इकट्ठा करना था, 70 करोड़ रुपया इकट्ठा करना था। मैं अपने जिन लोगों को जानता था, उनके पास जाता था, जैसे 70 करोड़ कहता था वो यानी मुंह इधर कर लेते थे। तो आखिर में मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, इतना ज्यादा पैसा था। तो उन दिनों में मैं क्रिकेट खेल रहा था, सबसे ज्यादा बच्चे क्रिकेट के शौकीन थे, तो किसी ने आइडिया दिया कि स्कूलों में चले जाओ। मैं स्कूल में चला गया और वो इतनी जबरदस्त कैंपेन थी जिसमें कामरान शाहिद ने भी शिरकत की और बड़े लोग, अब तो सफेद बाल लोग आके कहते जी मैं आपका टाइगर था स्कूलों में। तो उसने ऐसा जबरदस्त एक मोमेंटम बनाया माँ बाप को उन्होंने, और उससे एक और भी बड़ा चेंज आया जो मुझे बड़ा खुशी होती है, क्योंकि मेरी जो क्रिकेट टीम थी, जब मैंने शुरू में फंड रेजिंग शुरू की, क्योंकि मैं सिर्फ आखिरी 3 साल अपनी क्रिकेट खेला ही हॉस्पिटल के लिए, तो वो कोई मैं प्राइज जीता था, मैंने तो मैच होता था, गाड़ियां जीती मैंने, तो मैं हॉस्पिटल के नाम कर देता था। तो उन दिनों में जो प्राइज होता था वो टीम में डिस्ट्रीब्यूट, अगर मैं जीता हूं तो मुझे टीम में शेयर करना पड़ता, तो मैं उनको कहता था कि मैंने हॉस्पिटल को हाईलाइट करना। वो फिर सारी टीम होगी फंड रेजिंग में, और फिर मैंने देखा आर्टिस्ट अब इब्रार हसन और भी यानी यंग लोगों को अब मैं देखता हूँ आर्टिस्टों के, वो भी अब इस तरफ आ रहे हैं। तो एक मुल्क में चेंज हुआ कल्चर, पहले शुरू में कोई भी फंड रेजिंग नहीं करता था, तो अब बहुत लोग अब इस तरफ आ गए। तो ये जो कोरोना है, मैं समझता हूं कि अल्लाह ने एक हमारे मुल्क को चैलेंज दिया कि क्या ये कौम इस चैलेंज पे खड़ी होगी। और मैं फिर से कहता हूं कि ये जो हम कामयाब कैसे होंगे, अगर इस मुल्क में गुर्बत बढ़ गई हम फेल हो गए। स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्राम क्या? मैं ये कह रहा हूं कि ये अगर हमने इस मुल्क में गुर्बत को ना बढ़ने दिया, क्योंकि सब हिस्सा लेंगे इसमें, तो उस हिस्से में सारी कौम जब तक शामिल नहीं होगी तो हम कामयाब नहीं होंगे। तो जिसमें सबका रोल है, स्टूडेंट्स का रोल है, बच्चों का रोल है, आर्टिस्ट का रोल है, आप सब का रोल है, ओपिनियन मेकर्स का रोल है, ये एक कौम का चैलेंज है। और आप देख लेंगे कि इसमें से कई कौमों को बड़ा, जब इसमें से निकलेंगे नहीं सही तरह, वो जो अभी इफ्तिखार हुसैन ने कहा, कभी इतना बड़ा क्राइसिस दुनिया में नहीं आया, ये इकोनॉमी को तबाह करेगा, इसके बड़े बुरे असरात हो रहे हैं। तो जो कौम निकलेगी वो एक कौम बन के लड़ेगी जिसमें सब इन्वॉल्व होंगे। और जो ये अब कई मुल्क के अंदर आपको नजर आ रहा है कि वो मुल्क के अंदर दरारें पड़ गई हैं, उनकी इकोनॉमी कोलैप्स कर लिया और करेगी आगे। मैं खान साहब एक सवाल आता है, वैसे लाइन पे है चौधरी अकरम बैग, सुन ले पहले फिर मुझे। चौधरी अकरम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फैसल भाई, मेरी तरफ से प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए 2.5 मिलियन रुपीस और मेरे बच्चों रहीम और तलाल की तरफ से 1 मिलियन रुपीस और चौधरी सरवर साहब के साथ में मिलके 2.5 मिलियन राशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा मैनेजमेंट को दे चुका हूँ। 1 मिलियन का और फूड पैकेज उनको दिया जा रहा है। तो मुझे ये उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान पे अपनी शफकत रहमत नाज़िल अता करे और इंशाअल्लाह हमारा खून भी पाकिस्तान के लिए हाजिर है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बहरैन से चौधरी अकरम साहब। और हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि क्या नंबर है अब तक, कितना इस टेलीथॉन के अंदर आप कंट्रीब्यूट कर चुके हैं, जो कॉल्स आ रही हैं, जो SMS आ रहे हैं, ये पूरा नंबर हम आपको बताएंगे। जी नदीम भाई, आप कुछ पूछ जी। मेरा इमरान खान साहब आपसे जाती हैसियत में एक सवाल है और आई होप कि आप इसका थोड़ा सा वजाहत से जवाब दें। आप दुनिया में जहाँ जाते हैं अभी भी आपके हाथ में एक तस्बीह है, आप ये तस्बीह घुमाते हैं और इसके ऊपर आप पढ़ते क्या है, ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बना कैसे और कैसे शुरू? पता तो मैं तो समझता हूँ सारी तस्बीह पे दूध शरीफ पढ़ते हैं, मैं भी समझता हूँ जी जी जरूर पढ़ता हूँ। और इसकी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या बनी, कैसे शुरू हुआ? मुसलमान की जब उसको ईमान आता है तो उसकी इंस्पिरेशन तो एक ही होते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जो भी खास तौर पे जब आप सूफीज़म की तरफ से आते हैं, इस्लाम की तरफ, सूफीज़म की मियां बशीर, बट वो
सारा ये उसके बाद आया है। सब शुरू होता है नबी ये सल्लल्लाहु अलैहि उसके बाद आई है तस्बीह। वसल्लम। हाँ, लेकिन शुरू वहीं से होता है। जी, एक कॉलर है हमारे साथ, साजिद काजी साहब हैं, माइनिंग, पाकिस्तान माइनिंग से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब आपके फंड से अपनी कंपनी की जानिब से 50 लाख का वाह जी वाह, बहुत शुक्रिया। इसमें 20 लाख रुपए जो हमारे स्टाफ ऑफिसर हैं उनकी की तनख्वाह है और 30 लाख हमारे पास डोनेशन के थे सर, तो उस फंड से हमने दिए हैं। कल चेक पहुंच जाएगा आपके। बहुत शुक्रिया जी। सर वैसे ये कमर्शियल बैंक इतना पैसा बनाते हैं, इन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस को कहें बाहर आई तो पैसा बनाने का टाइम तो आपने बनाया, अब आके करो, पैसे दो उसको। अपने दिल की बात है ना, दिल की बात है। हाई इंटरेस्ट रेट में कमर्शियल बैंक्स में कमाया किसी ने भी नहीं किया। नाउ इज द टाइम टू पे बैक टू द कंट्री, गिव सम मनी। देखिए काशिफ आप ठीक कहते हैं कि हमने अभी तो ये शुरू हुआ है, क्योंकि मैं फिर से मुझे जो खौफ है कि अभी जो असरात लॉकडाउन के हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आएंगे, माशरे कभी हालात किस्मती से और बिगड़ेंगे, खास तौर पे हमारे कमजोर तबके के लिए। तो अब तक जो कुर्बानी इस सारे ये इसकी वजह से वो करोड़ तबका है। तो जो लोग जिन्होंने पाकिस्तान की वजह से बड़ा पैसा बनाया है, तो मैं ये उम्मीद रखता हूं कि वो सब कंट्रीब्यूट करेंगे। को आईटीपी से आओ, कोई शुगर मिल से आया हो, किसी को बड़े पैसे बनाने वाले नहीं, अभी इंशाल्लाह कंट्रीब्यूट सब करेंगे इंशाल्लाह। प्राइम मिनिस्टर ऑन लाइटर साइड एक सवाल है, ये तुम्हें पता है सियासत में आप किससे इरिटेट होते हैं, वो तुम्हें पता है। ये पता है क्रिकेट में किससे इरिटेट होते रहते हैं? कोई होगा बंदा जिंदगी में बहुत इरिटेट करता होगा। सरफराज मारता था। नहीं ऐसे देखिए, होता ये था स्पोर्ट्स में क्या होता है, जब आपकी 18 साल के हैं तो आपके और हीरोज होते हैं और राइवल्स और होते हैं, फिर जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते तो चेंज होते जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि मैं अपनी जिंदगी में आहिस्ता, क्योंकि मैं लेट डेवलपर था, मैं शुरू में जिस तरह मसलन वेव रिचर्ड्स वो एकदम स्टार बन गए, मैं इम्प्रूव करता गया टाइम के साथ। वो इस तरह कि मेरे में एक बाकी के मुकाबले में एक क्वालिटी थी कि मैं अपनी गलतियों का जायजा बेहतर करता था, सेल्फ एनालिसिस बेहतर करता था। उसकी वजह से मैं इम्प्रूव करता गया कि मैं अपनी गलतियां एलिमिनेट करता था। तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे लाइफ बदलते गए। But who irritated you? Has to be Ravi Shastri, I tell you. हमारे जमाने में इंडिया की टीम के ऊपर मुझे कई दफा तरस आ जाता है। हम उसे जितना इतनी दफा जीत गए, यानी वो जब शारजा में मैचेस होते थे हम तकरीबन हर जीत जाते थे, तो उनके ऊपर प्रेशर बड़ा होता था। तो मैं कई दफा टॉस करने जाता था उनके कैप्टन के साथ, तो मैंने उसकी शक्ल देखता था, उनके ऊपर घबराहट आई होती थी। लेकिन हमारे राइवल्स उस वक्त इंडिया नहीं थे, अब इंडिया हमारे से बेहतर टीम बन गई है। हमारे जमाने में वेस्ट इंडीज टीम थी, वो बहुत एक दुनिया की तारीख की एक बड़ी जबरदस्त टीम थी। उसके मैं नहीं समझता कि उस तरह की कभी टीम आई है। क्वेश्चन 92 वर्ल्ड कप फाइनल कॉलर जो है वो इरिटेट हो रहे हैं लाइन पर। नोट महमूद साहब। वालेकुम सलाम जी आप ट्रांसमिशन में हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान यहाँ तशरीफ रखते हैं। अहमद खान साहब को मैं जानता हूँ 50 साल पहले से। जी एफसी कॉलेज में को ये हमारे साथ प्रैक्टिस करते थे। मैं ओवरसीज पाकिस्तान हूँ और कुवैत से हूँ। और मैं एक साल पहले चीफ जस्टिस साहब ने कब्जा मेरा कब्जा छुड़वा के दिया था मंशा पंप से। उसने फिर दोबारा कब्जा कर दिया। अब मेरा कब्जा छुड़वा दे, मैं 1 करोड़ रुपया उसमें से डील है। फिर 3 करोड़ मांगे ना, कब्जा तो आपका हम मुफ्त छुड़वा देंगे और इसके बाद आप वैसे कंट्रीब्यूट पहले करोड़ करवा लेते बेहतर था जी। अब तक टोटल जो हो गया है वो 2 अरब 71 करोड़। इस ट्रांसमिशन में अब तक SMS के अलावा
बता रहा हूँ 52 करोड़ हो गया, मजीद भी आ रहा है। जावेद आफरीदी साहब बता रहे हैं हायर ग्रुप की तरफ से $3 लाख का इक्विपमेंट है वो डोनेट कर रहे हैं। थोड़ी देर अच्छा, बिकॉज इक्विपमेंट की भी बहुत जरूरत है, जिस तरह आप जानते हैं दुनिया में इक्विपमेंट शॉर्ट सप्लाई पे है। अच्छा ठीक है, सवाल पूछता मेरे को। हाँ, जब 18 ओवर हुए 35 विकेट बनते 18 ओवर, तो स्कोर बोर्ड क्या सोच रहे थे कि मैच गया? फाइनल की बात कर काशिफ, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, ये स्पेशली स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत ही जरूरी है, लेकिन एक कौम के लिए भी वही साइकी है। देखें, एक जब आप स्ट्रगल करते रहते हैं जिंदगी में, स्ट्रगल का मतलब ये है कि ऊंच नीच, कि आपने ऊंच भी देखी, फिर आप मार खाई, नीचे आए, फिर आपने सीखा, मेहनत की, गलतियां दूर की, फिर ऊपर आए। एक स्ट्रगल करते हुए एक पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, एक मुल्क भी अब पहुंच जाता है, एक टीम भी पहुंच जाती है, एक इदारा भी पहुंच जाता है कि आप में एक चीज आ जाती है, वो है सेल्फ बिलीफ, कि आप में अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप समझते हैं कि जो भी ऑपोजिशन करे मैं उसको हरा दूंगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो सेल्फ बिलीफ है ना, ये आपके अंदर फिर वो आपको रोकता है पैनिक करने से। ये जो एकदम लॉकडाउन कर दिया ना पैनिक करके उन्होंने कराची के अंदर, सिंध के अंदर, ये खौफ के अंदर किया है। जब आपके अंदर सेल्फ बिलीफ होता है ना, तो आप में ये ठहराव आ जाता है। आप समझते हैं कि कोई नहीं, ये मुश्किल वक्त है, मैं ये निकाल लूंगा, लेकिन इसके बाद मैं फिर हावी हो जाऊंगा। तो वो जो सेल्फ बिलीफ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है सक्सेस के लिए। तो जब हम वर्ल्ड कप से पहले अगर हम हमारी आप मैचेस देखें, तो हमने कितने मैचेस हारते हुए पीछे से जीता था, गए थे पूरा कप जीते, हम कितने और मैचेस जीते वर्ल्ड कप में। तो इस तरह वर्ल्ड कप में भी ये हमारे में ये बिलीफ, हम जिस तरह पीछे से आए, तो ये बिलीफ था कि हम हाँ ये मुश्किल वक्त है, ये निकाल लेंगे और इसके बाद हम फिर खड़े हो जाएंगे। ये प्राइम मिनिस्टर, जिस तरह आप स्पोर्ट्स की अपनी क्रिकेट की बात कर रहे हैं, आपने पहले कहा कि मैंने अपने करियर के अंदर ये चीज सीखी कि अगर मैं गलती कर रहा हूँ सेल्फ इवैल्यूएट करूंगा एंड देन आई राइज अप ऑन द ओकेजन। 22 साल की जद्दोजहद के बाद यू बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, नाउ इट्स अबाउट 20 मंथ्स आप प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इस 20 महीने को आप क्या इवैल्यूएट करते हैं? आपने गलतियां कर करके सीखा है, अपने आप को इम्प्रूव किया? मंसूर, एक तो सबसे बड़ा चैलेंज इन जिंदगी का जो चैलेंज मैं फेस किया, ये 20 महीने सबसे मुश्किल थे। इसकी मुश्किलात की वजह ये थी ना, देखें, एक इकोनॉमी थी, एक हमारी नई टीम आई। अब महातिर मोहम्मद, आप सोच लें कि वो एक मुसलमान दुनिया में स्टेट्समैन महातिर मोहम्मद होंगे और फिर अर्दोगान, जिन्होंने अपने माशरे बदले, बड़े बड़े नाम थे। महातिर मोहम्मद आप देख लें कि वो भी एक नई टीम के साथ आए, पहले वो दूसरी पार्टी में थे, वो फिर एक नई टीम एंटी करप्शन ड्राइव पे आए, उनके खिलाफ भी सारा स्टेटस को जमा हो गया। सोचे महातिर मोहम्मद मुझे यहां भी मिले, उन्होंने लिखा भी हुआ है, इसके बावजूद कि वो इकोनॉमिक्स जानते थे, उन्होंने अपनी मुल्क की इकोनॉमी टर्न अराउंड कर दी। उन्होंने ईस्ट एशियन क्राइसिस 98-97 में आया था, उससे निकाल दिया अपने मुल्क को IMF के जाए बगैर। वो जब आए, उनको भी वही मिली, एक बैंकरप्ट इकोनॉमी, एक इंडेटेड इकोनॉमी, उनको भी वही मसले मिले, स्टेटस को सारा इकट्ठा हो गया, जो इंट्रेंच था, करप्ट था। सारे जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए वो उन्होंने किए, और देख लें कि महातिर मोहम्मद जैसे इवेंचुअली स्टेटस को वापस आ गया। आज मलेशिया में वो स्टेटस को वापस आ गया। ये बड़ा मुश्किल होता है कि इंट्रेंच सिस्टम 30 साल से सिस्टम की जड़ें नीचे तक गई हुई हैं, ब्यूरोक्रेसी में गई हुई है, नीचे गई हुई है। आप एक नई टीम लेके आते हैं और फिर एक बैंकर जो मुल्क का बचा रहे हैं डिफॉल्ट से, क्योंकि हमारे पास मुल्क बैंक, हमारे पास तो पैसे ही नहीं थे। आपको पता, हम पेमेंट्स पे डिफॉल्ट कर रहे थे शुरू पहले 2-3 महीने। तो उस सिस्टम में एक नई टीम लाके बहुत बड़ा चैलेंज था। तो लेकिन जो मैं उससे सीखा हूं, मैं ये कॉन्फिडेंट हूं कि इंशाल्लाह ये जो क्राइसिस है, ये जो क्राइसिस है बहुत बड़ा क्राइसिस है, लेकिन मुझे जो इसमें अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, इंशाल्लाह इससे हम जब निकलेंगे, आप देखना पाकिस्तान और मुल्क निकलेगा। अच्छा, एक कॉलर है हमारे साथ, मियां अंजुम साहब है, FPCSI के प्रेसिडेंट। जी अस्सलाम वालेकुम अंजुम साहब। जी वालेकुम सलाम। जी वजीर आजम इमरान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्या डोनेट करेंगे सर? सबसे पहले जी प्राइम मिनिस्टर साहब का अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह फाइटर हैं, और जब भी इनको देखते हैं इसमें एक मोटिवेशन हमेशा आती है। और इसलिए तो वहाँ मुलाकात जो वो मैं अपने ग्रुप
TCS ग्रुप की तरफ से 2 करोड़ की डोनेशन का ऐलान किया था, जो कि चेक और डॉलर आपको दे चुके हैं। और दूसरा 2 करोड़ FPCCI की तरफ से उसका ऐलान किया था। एक मीटिंग ड्यू है इंशाअल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, इंशाअल्लाह जैसे मीटिंग होती है उस मीटिंग में 2 करोड़ का दे दिया जाएगा। बाकी कैश एंड क्राइम्स में अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे दोस्त लगे हुए हैं, हमारा ग्रुप भी लगा हुआ है जिसमें हम सैनिटाइज डॉक्टर्स के जो गाउन जो हैं और राशन वगैरह ये जो मामलात हैं इसको हम ऑलरेडी काफी सारा दे चुके हैं और इंशाल्लाह लगे हुए हैं और जो बन पाएगा इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी एक मुश्किल वक्त है और ये मुश्किल वक्त जो है सबने मिलकर बहादुरी के साथ इसका मुकाबला करना है। और हम तो जानते हैं कि हमारे जो भी ग्रुप का मतलब है जो भी मामलात होते हैं चैरिटी के मामले में हम कभी पीछे नहीं रहे। जी मियां साहब बहुत शुक्रिया और हमेशा आपने कंट्रीब्यूट किया और हम हर शौकत खानम की फंक्शन पे आप होते हैं, बहुत शुक्रिया। एक अनाउंसमेंट करनी है जी, वो ये है कि जो लोग ये कंट्रीब्यूशंस उनको चाहिए कि चौके ना लगाए छिक्के लगाए, इसलिए कि छिक्के लगाएंगे तो बाद में इन सब लोग जो जरा कंट्रीब्यूट करेंगे तो इनके नाम पर्चियों पर लिखे जाएंगे, फिर उसकी कुरानंदाजी होगी और जो 6 लोग होंगे, 6 लोग जिन्होंने जो खुशकिस्मत निकला इसमें उनको एक बल्ला मिलेगा और उस बल्ले पे 6 बल्ले मिलेंगे और हर बल्ले पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ऑटोग्राफ होगा। तो इसलिए आप 6 बॉल भी और 6 गेंदे भी हैं, 6 गेंदे भी हैं और 6 बल्ले भी हैं। तो कोशिश करें कि आप चौके ना लगाएं, छक्के लगाएं और 2-2.5 घंटे में हमने 2 अरब रुपया से ज्यादा इकट्ठा कर लिया है। तो आप प्राइम मिनिस्टर साहब ये भी बताएं कि ये जो 2 अरब रुपया आपने इकट्ठा किया है इसको आप कितने खर्च करेंगे और कैसे खर्च करेंगे? सबसे पहले तो हमें प्लीज एक चीज याद रखें कि ये जो फंड रेजिंग है ये हम एक 2020 मैच नहीं खेल रहा है, ये एक किसी को नहीं आज बैठ के आज कोई भी आप नहीं कह सकते कि 2 हफ्ते के बाद क्या होगा, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, कोई भी दुनिया में नहीं कह सकता, क्योंकि एक ऐसी चीज है इसका कोई प्रेसिडेंस नहीं है। इसलिए ये जो फंड रेजिंग है ये मुसलसल रहेगी। हमारे पैसे, मुझे जो खौफ है कि हमारे पास जो पैसे हम खर्च कर रहे हैं ये एहसास प्रोग्राम में कैश जो दे रहे हैं बिल्कुल इस वक्त नीचे तबका है, लेकिन मुझे खौफ ये है कि सफेद पोश भी वो भी बड़ी मुश्किलों के अंदर लोग हैं जिनकी एकदम छोटे कारोबार खत्म हो गए हैं, जो जा भी नहीं सकते, ज़कात के लिए भी नहीं हाथ फैला सकते, बड़े मुश्किल वक्त हैं लोग। तो ये सारी हमारी कोशिश होगी, गवर्नमेंट अपने भी फाइनेंस, जैसा मैंने कहा हम बैंकों से भी ले रहे होंगे, इंटरेस्ट फ्री लोन्स भी दे रहे होंगे, कई जगह के हम गरीबों के लिए जो निचला जो 300 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं उनके लिए हमने गैस और बिजली के लिए सबके लिए उनके लिए भी हमने डिफर कर दिए पेमेंट्स। तो पूरी कोशिश करें आसानी के लिए, लेकिन ये जितना भी पैसा आता रहेगा ये सब जगह के लिए। ये मेरी एक तजवीज़ है, दुनिया सारी में बड़े खिलाड़ियों की चीजें ऑक्शन होती हैं, तो आपकी डोनेशंस तो वैसे ही आ रही हैं, आप बैट्स को भी साइन करें, भी साइन करें, उनको ऑक्शन पर रखें, ये फैसल जावेद उनको ऑक्शन करें, वो पैसा किसमें डोनेशन में आपने सबको बुला लिया, ट्रैवल मीडिया ग्रुप को बुला लिया आपने, दुनिया आपके साथ खड़ी हुई है, आप ये दफ्तर का सवाल करो, पता आप इसमें फंसा डाल देंगे, फिर पूछो को भी साथ मिला लें उनसे, ठीक है आपकी जितनी भी वो नाराजगी जितनी भी आपकी हो उनको भी कहे, हो सकता है आपको पाकिस्तानी खाते लेते हैं मुल्क के खाते, और शहबाज शरीफ गले लगा, जरदारी साहब गले लगा ले। अच्छा इसमें अब इसमें खतरा है, खतरा क्या है? उनको अगर साथ लिया है तो मेरी डोनेशन ही ड्रॉप ना हो जाए। कैसे? नहीं मैं तो ज्यादा अगर हो जाइए या फिर बात सर सीरियस नोट पे एक सवाल उसके बारे में। टेलीफोन नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप कॉल कर रहे हैं 051-921-7122। अकाउंट नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है नेशनल बैंक का 4162786786 और साथ ही में ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए वेबसाइट आ रही है जिस पे आप जाएंगे तो बहुत ही आसानी से आप वहां से जो है कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक कमेंट मैं करना चाहूंगी प्राइम मिनिस्टर साहब, और मेरा जिस इलाके से ताल्लुक है वहाँ के लोगों से मेरी मुलाकातें होती हैं, बात होती है, मैं मुतअद्दिद मरतबा पेशावर, बन्नू, करक और मर्दान साइड के इलाकों में गई हूँ, मैंने कवरेज की है इलेक्शंस की। उन लोगों ने मुझे ये कह के भेजा था कि उनको क्या भेजना कि जो दहशतगर्दी हमने वहाँ पर देखी है, जाहिर है हम इस वक्त पूरी कौम को मोटिवेट कर रहे हैं, लीडर का मोटिवेटेड रहना भी बहुत जरूरी है। प्राइम मिनिस्टर, यू आर द लीडर राइट नाउ। और उन्होंने मुझे ये कहा कि पठान कौम की पश्तून की शनाख्त
ان کو واپس ملی ہے جب عمران خان صاحب نے اوتھ لیا تھا پرائم منسٹر ہونے کا. اور یہ صرف پٹھانوں کی بات میں اس لیے نہیں کروں گی کیونکہ پھر وہ لسانیت کا ایک آ جائے گا. اس میں پاکستان had lost its space global political arena میں. You have gained it back for us. So this is what I had planned. میں آپ کو کہوں گی کہ so that you also stay motivated and keep fighting. پرائم منسٹر صاحب ایک اور ایشو ہے, بہت سارے لوگ, آپ نے بتایا ہے تباہ کاریاں کرونا کی اور پورا میڈیا بھی لگا ہوا ہے, ابھی بھی پاکستان میں بہت سارے لوگ دیہاتوں میں ایسے ہیں جو اس کو کرونا کو ایک افواہ سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کوئی نیو ورلڈ آرڈر بن رہا ہے, پتہ نہیں اس میں کچھ سازش ہے. اس کی وجہ سے ہمیں نظر آتا ہے کہ جو سوشل ڈسٹینسنگ آپ جس کو پروموٹ کرتے ہیں ڈاکٹرز, وہ وہاں پہ ہمیں نظر نہیں آتی. اس حوالے سے بھی کوئی آپ کے ذہن میں ہے کچھ اور سیکٹر صاحب ہیں ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم, کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم, میں کلیم صدیقی بول رہا ہوں, چیئرمین پاکستان کونسل آف آرکیٹیکٹس اینڈ ٹاؤن پلانرز اور انسٹیٹیوٹ آف آرکیٹیکٹس پاکستان. میں پاکستان میں تمام آرکیٹیکٹ ٹاؤن پلانرز کا میں ریپرزینٹیو ہوں. اور عمران خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان, اس کو میں سلام پیش کرتا ہوں. اور آپ کی جو کنسٹرکشن پالیسی ہے اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہماری آرکیٹیکٹ کمیونٹی اور ٹاؤن پلان کمیونٹی جو ہے وہ بھرپور اس میں حصہ لے گی اور ان کو پوری طرح حصہ لینے کی وہ کی جائے, اسسٹ کیا جائے. اور میں آرکیٹیکٹس اور ٹاؤن پلانرز اور انسٹیٹیوٹ کی طرف سے 50 لاکھ روپے کی ڈونیشن پرائم منسٹر فنڈ میں اناؤنس کرتا ہوں. بہت شکریہ. میں آپ کو یہ شور کرتا ہوں کہ یہ جو کنسٹرکشن ہے اس کو میں خود ڈرائیو کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کنسٹرکشن ایک ایسی انڈسٹری ہے جو کہ سارے ملک کی باقی انڈسٹریز اور سارے ملک میں روزگار لوگوں کو دے سکتی ہے اور ہماری اکانومی کو چلا سکتی ہے. تو آپ یہ مطمئن ہو جائیں کہ اس کو میں خود ڈرائیو کر رہا ہوں. اور مجھے پتہ ہے کہ میں نے دیکھا بڑی رکاوٹیں ہیں کنسٹرکشن اور اجازتیں اور NOCs, وہ سب ہم ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ کنسٹرکشن کے لیے آسانی ہو. پرائم منسٹر, ابھی آپ نے بات کی یہ کمیونیکیشن کورونا کو پتہ لگے ایز ٹائم ہاؤ تھنگز انفولڈ, بجٹ بھی آنے والا ان 2 months ٹائم. تو جتنے آپ انیشیٹوز اب لے رہے ہیں, کیا ان کی بھی کوئی ریڈ لائن ہے کہ بجٹ سے پہلے میسو ایک انفیوژن آ جائے اینڈ بجٹ جو ہوگا ان اٹ سیلف وہ کتنا اس پہ فیکٹر کرے گا کہ یہ ٹیکس ریونیو اکٹھے کرنے والا بجٹ نہیں ہے بلکہ انڈسٹری کو پورا اٹھانے والا بجٹ؟ یہ بالکل ہمارے ٹھیک کریں کیونکہ اس وقت ہم پاکستان چھوڑیں, اب صرف اور صرف ایک ورڈ یوز ہو رہا ہے, اسٹیمولس. اکانومی کو اٹھانے کے لیے پورا ہر ملک کوشش کر رہا ہے کہ لوگوں کے لیے انسینٹیوز دے, بزنسز کے لیے. تو ہم نے پوری طرح کرنا ہے کیونکہ ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنا بڑا ایک تعداد لوگوں کی ہے جو کہ بے روزگار ہو گئے ہیں, اور جس طرح میں نے کہا اس کے بھی ریپرکشنز آئیں گے آگے. اس لیے ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ریونیوز ہمارے نیچے جائیں گے, وہ ابھی بھی نظر آ رہا ہے کہ نیچے ٹیکس کلیکشن نیچے گرے گی, لیکن اکانومی کو اٹھانا اس لیے ضروری ہے. اگر کبھی بھی ڈیفیسٹ فائنینسنگ کرنی ہے آپ نے اپنی اکانومی اٹھانے کے لیے, انسینٹیو جو آپ نے دیا ہے کنسٹرکشن کو, نو پرسنٹ پاسبلٹی ہے کہ 1-2 سال کا ایسا کچھ آ جائے کہ کوئی بھی کسی بھی سیکٹر میں لانا چاہے, نو کوشچن تو آ جائے؟ بالکل. میں تو پوری کوشش کر رہا ہوں. آپ کو پتا ہے ہم ایک تو فیٹف راستے میں پڑا ہوا ہے کیونکہ وہ ٹیرر فائنینسنگ کی وجہ سے اتنا وہ ریسٹرکشنز ہمارے پر ڈالی ہوئی ہے. لیکن جو میں اب دیکھ رہا ہوں کہ دنیا پہلی دفعہ یہ ریئلائز کر رہی ہے کہ ہمارے جیسے ملکوں میں یہ جو لاک ڈاؤن کے اتنا ملکوں میں غربت پھیلے گی. یہ تو اب IMF بھی اس کے پر تو ورلڈ بینک کی بھی اب اسٹیٹمنٹ آ چکی ہے. تو ہمیں نو پرسنٹ اس لیے کرنا ہے کہ ہماری زیادہ تر اکانومی تو انفارمل ہے. تو ہماری تو کیونکہ ہمارے پاس تو امریکہ کی طرف 1000 ارب یا 2000 ارب ڈالر نہیں ہے, تو ہمارا جو بھی ملک میں وسائل ہے ہم نے کھینچنے ہیں اندر تاکہ ہم اپنی اکانومی اٹھا سکیں. لیکن ایک چیز آپ نے IMF سے ہی بات ہوئی ہوگی, آئی ایم شیور ورلڈ بینک سے ہوئی, امریکن سے ہوئی, جرمن سے ہوئی, یہ قرضے ہم نے دینے ہیں فی الحال ڈیفر تو ہو گئے ہیں,
قرضے ریسکیجول ہوں گے یا کہیں نہ کہیں قرضے ویو آف بھی ہو سکتے ہیں ان دس کرائسس کے سال لگے کاشف ابھی تو میں آپ کو بتاؤں ہوا کیا یہ ہماری بڑی اچیومنٹ ہے پہلے تو صرف 50 ملکوں کو یہ قرض میں ریلیف مل رہی تھی لیکن شکر ہے کہ انہوں نے ہم نے پھر زور لگایا اور جرمن چانسلر سے میں نے بات کی پھر ہم نے امریکن میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو میں نے ان کا شکریہ ادا کرنا تھا انہوں نے بھی ہماری مدد کی تو اس کے اندر پھر 70 ملک ہوئے جس میں پاکستان انکلوڈ ہے ابھی صرف ہم انکلوڈڈ ہے اب آگے مزید نیگوشیشن چلیں گی ڈیٹ ریلیف کے اوپر ابھی تو ہم ان 70 ملکوں میں آ گئے ہیں تو یہ کوئی کہہ رہا تھا جی اس میں پاکستان کو کیا ریلیف ملے ابھی ریلیف ابھی صرف ان 70 ملکوں میں ہے جن کو ڈیٹ ریلیف ملے گا اب وہ نیگوشیٹ کریں گے اب تھوڑا سا کامن صاحب جو سیاست کے بارے سے بات کی تھی ناٹ گوئنگ ٹو گو ٹوورڈز پالیٹکس اسپیسیفکلی کہ آپ اپوزیشن کے لوگوں کو بھی ساتھ بٹھائیں چلے ٹھیک ہے وہ تو نہیں ہو سکتا لیکن رائٹ ناؤ جس طرح پورے قوم کا ایک ٹیسٹ ہے ایز اے لیڈر یہ آپ کا بھی بہت بڑا ٹیسٹ ہے ایز اے پرائم منسٹر آپ کے جو مخالفین ہیں ان کے جو سپورٹر ووٹر ہیں مسلم سے پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کے بھی پرائم منسٹر پورے پاکستان کے پرائم منسٹر ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ بھی آ کے آپ کو اس فنڈ کے اندر سپورٹ کریں دیکھیں منصور سب سے تو آپ کے لیے سامنے یہ جو اساس کیش گرانٹ ہے 144 ارب روپے کے لیے سب سے زیادہ اس کے اندر مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی سیاست اس میں نہیں تھی سندھ کے اندر یہ جدھر بھی غربت زیادہ ہے ادھر یہ کیش گرانٹس گئی ہیں تو اندرون سندھ میں غربت سب سے زیادہ تھی ادھر چلی گئی تو یہ بالکل نان پولیٹیکل بیسس پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے سو اس لیے باقی ساری پارٹیز کے جتنے بھی سپورٹرز ہیں ان کو صرف میں یہ کہوں گا کہ یہ اس وقت یہ قومی چیز ہے اس کے اندر کوئی کسی کے اندر ہم نے اس میں کوئی سیاست مطلب یہ کہ اپنے سپورٹرز کو بھی ہم کو نواز رہا ہے اور یہ ٹائیگر فورس کو یہ جو کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کوئی پولیٹیکل نام چینج کر دیں اس کا ایشو یہ نہیں ہے دیکھو کامران ایشو یہ ہے کہ ہمیں آگے جو یہ ٹریک اور ٹریس چیز جو کرنی ہے نا کہ لوگوں کو ٹریک پہلے ٹریس کریں پھر ان کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے فیڈ ہوگا وہ ہمارے ڈیٹا بیس پہ ان کو فالو کریں اس کے لیے آپ کو ایک فورس چاہیے جو لوگ ان کو اپروچ کریں گے مثلا ڈفرنٹ یونین کاؤنسل ہیں بڑا اچھا آئیڈیا لیکن میں کہہ رہا ہوں نام پہ اگر ایشو صرف یہ ہے کہ یہ جو میں پھر سے کہتا ہوں یہ قوم پوری لڑے گی اس کے اندر کوئی پولیٹیکل بڑا اچھا انیشیٹو ہے اور اس انیشیٹو میں بہت سی جو دوسری پارٹیز کے کارکن ہیں وہ بھی اس کا حصہ بن چکے ہیں اور وہ ٹارگٹ بننا چاہتے ہیں تو آگے بڑھتے ہیں نوید صاحب ہمارے پاس سعودی عرب سے السلام علیکم نوید صاحب کیا کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں وعلیکم السلام فیصل بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہے جی کیا کنٹریبیوٹ کرنا میں اپنے دل سے خوشی سے اپنے دل سے پرائم منسٹر فنڈ ریلیف فنڈ کرونا فنڈ میں 10 ملین کا اعلان کروں گا اور جو کہ مجھے زلفی بھائی نے راشن کے لیے مستحق لوگوں کے لیے کہا ہے تو اس کے اوپر بھی میں نے بہت ساری راشن کے لیے میں اعلان جو سعودیہ میں ہمارے بھائی ہیں پاکستانی جن کے پاس راشن وغیرہ نہیں ہے تو میں پرائم منسٹر کو کہوں گا کہ اس بات پہ زلفی بخاری نے مجھے یہ اپروچ ٹھیک ہے یہ راشن وغیرہ دینے کے لیے جی بہت شکریہ میں صرف یہ کہوں گا کہ ہمارے بہت اس وقت بیرون ملک پاکستانی مشکل میں ہے مجھے سارا وقت ہم فالو کرتے ہیں ہر روز اپنی جو نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اندر ہم کیسے ان کو پاکستان لا سکے بدقسمتی سے مڈل ایسٹ کے اندر کیونکہ ایک دم تیل کی بھی قیمت نیچے گئی ہے اور بزنسز بھی بند ہوئی ہیں تو کئی ہمارا جو مزدور جو اس ملک کا بہت بڑا اثاثہ ہے ان کی ریمیٹنس پہ ملک چلتا ہے وہ ان کے لیے بڑی مشکلات ہیں میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ان کی حکومتوں سے بھی ٹچ ہیں اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو واپس لائیں اس کے لیے صرف مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ یہاں ہم نے کوارنٹین کی پوری تیاری کر دی ہے کہ وہ جب آئیں تو ہم ان کو دیکھ سکیں کم از کم کہ وہ صوبے بھی ڈر رہے ہیں کہ اگر آپ ان کو لے کے آئیں گے اور ان کی ٹیسٹنگ نہیں ہوگی یا ہمارے پاس فیسلٹیز نہ ہوں تو پھر ان کی وجہ سے پھیل نہ جائے جی اب تک جو آپ ایس ایم ایس کر رہے ہیں اس ٹرانسمیشن کے دوران جو آپ ایس ایم ایس کر رہے تھے 6677 پر تو اب تک اس میں 8 ملین جو ہے وہ آ چکا ہے اور باقی پیسہ کے تھرو آپ
कर रहे हैं उसमें 2.2 मिलियन आ गया है और बाकी इससे अलग है। मजीद कॉलर्स भी हमारे साथ आ रहे हैं, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे मौलाना तारिक जमील साहब जो कि दुआ कराएंगे। जी पनाहगाह इज अ वंडरफुल इनिशिएटिव, हमने वहाँ पे शोज भी किए, इफ्तारियों भी की लोगों के साथ। हमारा इस वक्त एहसास टेलीथॉन में जो कंसर्न है वो उस तबके का जो डेली वेजर है, जो मजदूर तबका है, जो बेघर है। जो कंसर्न इस बात का है कि बहुत सा